Taking from there, just anybody from the audience would like to add on to that, please? Anybody? I'm Nirmala, and I have retired from Delhi University. I taught for 44 years in university. But I'm sorry to tell you, within 4 or 5 years, with this global economy, such a drastic change has taken place. Total deterioration of values. Even at home, we are trying our level best to give कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाए, but कहीं ना कहीं जो peer pressure है, वो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? जैसा भी मिस्टर कौल आपने भी कहा और मिस्टर वर्मा ने भी कहा कि आज के जो बच्चे हैं, वो अपने स्वभाव में नहीं जी रहे हैं, वो प्रभाव में जी रहे हैं. वो प्रभाव है बाहर की इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का. बच्चा स्कूल जाता है, उसमें इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरे फ्रेंड के पास ये है, तो उसका इससे काइंड ऑफ विशियस सर्कल, जहां पेरेंट्स भी क्योंकि नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के अंदर एक कॉम्प्लेक्स आए, तो जहां तक आई थिंक आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस प्रभाव कि यंग बच्चों ने इतना जबरदस्त एक मिशन लिया है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि हमें स्कूल में जा जाकर एक तरीके से बच्चों के अंदर जो नैतिक शिक्षा है, जो आध्यात्मिक वैल्यूज हैं, हमें उनको क्रिएट किया जाए. ठीक है, बहुत मुश्किल है ये काम, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि बच्चों के जो हमारे संस्कार हैं कहीं ना कहीं बनाए जाए. भौतिक युग में जो आध्यात्मिक, जैसा कि अभी अंजलि ने भी बोला है, वो बहुत जरूरी है. अभी पारुल ने भी जो हमें मेडिटेशन कराया, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में इट इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट कि हमने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली हैं, हमने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं एंड वी फील की, लेकिन जहां हमारे बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, इट इज ए वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम. थैंक यू. Because this all leads to how confident you are and how कितना आप सोसाइटी से अलग होकर जी सकते हैं या रह सकते हैं या अपनी जगह इस सोसाइटी में बना सकते हैं. तो ये एक हमारे पास बहुत बड़ी बात है जो हम एक अच्छा डिस्कशन करेंगे. बट कैन वी गो अहेड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डी-स्ट्रेसिंग. बिकॉज हम स्ट्रेस को इतना कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है यहाँ पे बैठ के भी बहुत लोगों को स्ट्रेस है या यहाँ पे आने पे भी बहुत लोगों को स्ट्रेस हुआ हो, बट इज दैट एक्चुअली अ स्ट्रेस? दैट विल टॉक टू आवर पैनलिस्ट लेटर. बट नाउ कमिंग बैक टू द de-stressing process. First, I like to begin with the audience and then I'll request my panelists to talk about that, please. What do you think is de-stressing? What is de-stressing? Relaxing. Anybody else? Coping with the stress. Pardon me? Coping from the Cope up with the stress. Find a solution, plan, time management, all the other planning. All right. Okay. Anybody else? Anything which gives you happiness. Yeah. We have to consciously think about it. Okay. Maybe looking, while we were sitting outside having a cup of tea or coffee, so nicely arranged by you. 3 of us were enjoying the cold breeze. I think it was very, very de-stressing for us. All right. Abhimanyu, can you just elaborate on that, please? See, actually, if you ask me, de-stressing, as you rightly said, if you look at it in a just a word basis, it is removing the stress. Now, I'll give you an example. There's a tolerance level of each one of us. When your child comes to you and start playing with you, sometimes it bugs you to hell. You want to say, get lost. If it is somebody else's child, you'd slap and say, get out from here. But if it is your baby, okay, there's a lot of tolerance. Okay, thank you very much. Okay, handling stress. So if you look at it from de-stress point of view, as Madam was saying, the values, see, I'll tell you, I have a challenge on values also, I'll tell you later on, but the moment you increase your capacity to tolerate, the moment you increase your capacity to bear, the moment you increase your capacity to understand, the stress keeps going down. It is not as black and white and saying that I will take a pill and stress is gone. It doesn't work like that. You only add up after effects. So you take a crocin and you have another effect, and you can't get sleep now. You need another pill to sleep.
So the effect is, if you want to get rid of anger, you don't say that I want to get rid of anger. If you keep saying anger, anger, anger will never leave you. You have to talk about love. You have to talk about peace. Similarly, if you want to get de-stressed, you have to increase something that will automatically make it disappear. You go near a saint, I'm talking about real saints. You see, they don't get stressed for anything. You go and tell them that, Master, world is going to dogs. He said, no, world is as it should be. Oh, I am restless. Sit, you will feel peace. He has got no stress because he has got something in him that he has gone to such level that nothing matters to him. But for us, we are like babies. A chocolate is taken away from me and I am like, I've lost all my life. Can you imagine that? Take a baby chocolate from the baby's hand. The baby will kill. But that's all his life. So imagine if we lose a car, a job, and 1% marks in an exam, we jump from the cliff. That is the problem. So if you look at de-stress solutions, we are actually looking for something to increase something in us. What is that something? I just wanted to suggest, because he has done a lot of research in stress. I want to hear about it. शशि जी, because हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, शशि जी कुछ इसके बारे में हमको बताइए और इलैबोरेट करिए प्लीज। स्ट्रेस में पढ़ाई को लेकर तो मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे बहुत नोन स्कूल है, वहां पर एक घटना घटी जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जिन्होंने मैं उस संस्था के साथ जुड़ा हुआ था, एक लड़की का छत से कूद कर आत्महत्या करना। रिसर्च किया, जितना जाना उसके बारे में, एक ही रीजन समझ में आया कि बच्ची स्ट्रेस में थी, उसके पास एग्जाम का स्ट्रेस था। और डिटेल में गया कि मुझे लगा कि ये ऐसी बात है, इस पर बात करनी चाहिए। आज देखिए, आज के अखबार में भी देखिए आप, एक बच्ची ने IIT पटना में कूद कर आत्महत्या कर गई है। वो भी 3rd ईयर में थी, सेमेस्टर में मार्क्स नहीं आए, इसलिए वो कूद गई। फिर क्या रीजन था इस तरह के स्ट्रेस को लाने का? हम सब पढ़ाई करते हैं। मुझे लगता है कि जब मैकाले ने जब ये शिक्षा पद्धति बनाई होगी तब सोचा भी नहीं होगा आगे जाकर के इतना बड़ा ये काम हो जाएगा, लोग स्ट्रेस में आके इस पढ़ाई को लेने लगेंगे। जब मैंने स्क्रिप्ट लिखने के दौरान 11-12 महीने तकरीबन मैंने 12 महीने इस पर रिसर्च किया था। मैं लोगों से बात करने गया, कई लोगों से बात करने गया, पेरेंट्स से, टीचर से, स्कूल्स में जाकर के। We have the Guru Shobna Narayan amongst us, and welcome ma'am to Prabha Forum. I'll just come back to her. Let Shashi ji continue, please. मैं कई पेरेंट्स के पास गया बात करने के लिए और ऐसे ही पूछता था, अच्छा तो क्या सोचा है अपने बच्चे के बारे में? आप बिलीव कीजिए 90% लोगों ने ये कहा था बस 12th हो जाए, मैंने सोच रखा है सिडनी जाके MBA कर लेगा, वहां जाकर बस हमारे काम में हाथ बटाएगा। किसी ने कहा बस इसका ये 12th हो जाए, कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, CA तो बनना ही है इसको, क्योंकि उसके पेरेंट्स खुद CA थे। इस तरह सभी ने, लगभग तकरीबन सभी लोगों ने, मतलब 10% होंगे जिन्होंने कहा था कि बस हाँ ठीक है देखते हैं, लेकिन 90% लोगों ने यही कहा था कि बस उसको ये बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये बनना है, कोई लॉयर का बेटा तो लॉयर बनना है। किसी ने ये एक बार ये नहीं कहा कि बस देख रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा आदमी बन जाए, फिर कुछ बनना होगा तो बन ही जाएगा। किसी ने नहीं कहा। मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का बात था कि भाई ये जायज सी बात है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचता है। मेरे फिल्म में भी मेरा बाप जो है वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोच रहा है, लेकिन उसके सोचने का नजरिया अलग है। वो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चों जो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं बहुत कर रहा हूं, और
मेरी समझ से इसको मैंने सब कुछ दिया है जो हो सकता है शायद मेरे पास नहीं था। यहीं पे एक बात है कि आप बच्चों को ये समझा रहे हैं कि तुम मुझे समझो, या बच्चों को ये कह रहे हैं, बच्चों को आप समझ रहे हैं। तो बच्चों को समझने के बजाय आप अपनी समझ थोप रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब मैंने तो बहुत किया है। 10 जगह जाके बोलते हैं आप कि भाई 80% से तो कम नहीं लाती है, लेकिन इस बार उसको मुझे लगता है कि 90% ले आएगी। आप परसेंटेज में बात करते हैं अपने कॉलीग्स के साथ जाके ऑफिस में कि उसने ये मार्क्स लाने हैं, अच्छा कर रही है, मुझे तो लगता है कि इस बार तो मेडिकल क्रैक कर देगी। अब ये बात बच्चा हो सकता है अच्छा कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, कर ही रहा होगा, लेकिन ये सब बात सुनने के बाद उसको लगता है कि शायद कहीं अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ना कर पाऊं क्या होगा। वो एक अलग तरीके के एक स्ट्रेस में जीना शुरू करता है। वो दिन रात पढ़ने की कोशिश करता है और फिर आप गाइड भी करते हैं, अच्छे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे बाहर नहीं खेलते, अच्छे बच्चे एकदम टाइम पे पढ़ते हैं। आप तमाम चीजें उसको इतनी अच्छा चीज बता दिया है आपने कि वो और स्ट्रेस में चले जाते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है शायद मैं इस तरह से मार्क्स ले आऊं। और अब सोचिए कि एक पल को उसके दिमाग में ये आए कि मैं ये मार्क्स ना ले पाऊं तो क्या होगा। मेरे पेरेंट्स जो इतनी जगह बोल रहे हैं, इतनी सारी चीजें जगह बोल रहे हैं कि मेरी बेटी तो अच्छा करेगी, मेरा बच्चा अच्छा करेगा, कितने बड़े स्ट्रेस में होगी। मेरे फिल्म मैं पूरी स्क्रिप्ट तो नहीं बताऊंगा अपनी फिल्म की, क्योंकि इतना समय नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन मैं आपको अपने फिल्म के स्क्रिप्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने क्या क्या इसमें रखा है। मेरे फिल्म का किरदार भी सुसाइड करता है, सुसाइड करने के लिए बढ़ता है। क्यों बढ़ता है उसके पीछे रीजन ये है कि उसके पेरेंट्स, जब ये लगता है कि अरे एक जगह उसको मैंने अच्छा माहौल दिया, अच्छा मार्क्स ले आए हैं, ये उसको अच्छी पढ़ाई के लिए और बाहर भेजता हूं। अच्छी पढ़ाई के लिए वो एक बड़े से स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, और वहां पे लगता है कि यहां पे अच्छी पढ़ाई हो रही है, ये तो यहां से सीधे मैं डॉक्टर हूं तो ये भी डॉक्टर बन के ही निकलेगी। जब ये नए जगह पे पढ़ने आती है, जब अपने जगह पे टॉपर है, नए जगह पे पढ़ने आती है, यहां पे देखिए उसके साथ क्या होता है। उसको लगता है कि यहां तो हर बच्चा टॉपर है यार, मैं जिस बैच में पढ़ रहा हूं यार सारे 90% ऊपर लाने वाले हैं, मेरे टॉपर होने का क्या मतलब है। और ये सारे ये जितने बच्चे हैं सब कुछ करते हैं जो मैं नहीं कर पाया, अरे ये क्या हो रहा है। फिर उसको यहां पे बहुत सारी चीजें नहीं लगती हैं, कल्चरल शॉक हो जाता है। उसको लगता है यार ये चीज कैसे हो सकती है, मैं शायद कहीं पीछे रह गया। वो एक अलग तरह के स्ट्रेस में जीने लगता है। उसको लगता है कि यार मैं कुछ भी कर लूं शायद इन लोगों से कोप अप नहीं कर पाऊंगा। अब एक पल को लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूं। होता है, अक्सर ऐसा हो रहा है कि जब हमने कोई बच्चा अपने फादर को फोन करना चाहता है कि और कहता है कि पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बेटा हिम्मत से काम लो। ऐसे थोड़ी होता है, हमने भी किया है अपने जमाने में, और मेहनत से ही होता है। 4 ज्ञान का पाठ पढ़ा देते हैं, आप भूल जाते हैं कि पूछ तो लो क्या हुआ उनके साथ। ऐसे माहौल है हमारे फिल्म में, और जब लगता है कि बच्चा मार्क्स कम आ रहे हैं और अब लगता है कि टीचर पेरेंट्स सब उसको अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे और एकदम से वो कूद जाती है, सुसाइड करने के लिए बढ़ जाती है। मेरे फिल्म ने ये बहस छेड़ने की कोशिश की है, करेगी इनफैक्ट जो स्क्रिप्ट है, कि क्यों पेरेंट जो माँ बाप हैं वो क्यों नहीं बात करते अपने बच्चे से। वो क्यों नहीं ये कहते कि बच्चा तुम करना क्या चाहते हो। नहीं, ऐसे आज की डेट में भी ऐसे पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि जो अपने बच्चे से पूछते हैं कि क्या करना चाहते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये पहले से तय करते हैं कि बच्चे क्या करेंगे। मेरी फिल्म ये बहस छेड़ना चाह रही है कि टॉपर होना जरूरी नहीं है। टॉपर होने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं, वो भी अपने आप में एक सक्सेस की बात है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एकदम पढ़ाई करो और उसमें 99% मार्क्स ही ले आओ तभी तुम सक्सेस कहलाओगे, यार वो लोग भी सक्सेस जो 50% मार्क्स लेकर आते हैं और लाइफ अच्छा लीड कर रहे हैं, वो भी सक्सेस है। हम हमेशा कहते हैं बच्चों को कि बी द बेस्ट, अच्छा बनो। कोई नहीं कहता, कोई गाइड नहीं कहता डू योर बेस्ट, अच्छा कोशिश करो करने की, हो गए अच्छा बन जाओगे।
और एक चीज जो मैं चाह रहा हूं, मतलब ये इस फिल्म से बात निकल के आएगी कि आप अगर टॉपर हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हर फील्ड में आप टॉपर हैं, हर फील्ड को आप जानते हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप हो सकता है बहुत कुछ नहीं जानते। मैं फिल्म मेकिंग अगर समझता हूं तो इसका मतलब थोड़ी है कि मैं जाकर कार मैन्युफैक्चर करने लगूंगा।